Okay, now I just open the case. सर अभी ऐसा लग रहा है Huh? कि कब गुरुवार आएगा, कब शुरू करते हैं. Okay, this सही is बात. 14th August कम से कम 2001. हम सब. हाँ जी मैडम, ये इस हर बार जो भी हम गुरुवार को जब मुलाकात करते हैं, हमें कुछ नया नया चीज भी होने के लिए होता है. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ साथ में हर बार एक छोटी सी टॉपिक 10 मिनट के लिए बात करें अगले बार से. उसके बाद एक केस का डिस्कशन हम चले, लिमिट करें हम 1 घंटे के लिए, ताकि मैंने अभी ग्रुप में देखा था ये पिछले हफ्ते में पुनर्फू योगा. Last time also I have used the Punarphu Yoga word for the girl, dwarf, hirsutism. Okay. When I used this Punarphu, at the time nobody concentrated, but very fortunately we had a subsequent discussion, and there is a much more clarity. Okay. Now here already we have discussed about the Punarphu. This case, especially here, the 14th August 2001 at 12:55, Balar Shah has been erected here. The nakshatra lagna is the Vrishchika lagna, Anuradha nakshatra, and Chandra is the Rohini, 4th pada in the Rishabha Rasi. Here the lagna and Chandra are the opposite side. For the Vrishchika lagna, if I am not mistaken, the Karkata is the Badhaka Rasi and Chandra is the Badhakadipati. Right. And here the Mercury, even though there is one Rasi difference between the Surya and Buddha, the Buddha is combusted. He is Astangata. Okay. And here you can just see the rest of the planets are in normal. No retrograde planets are there with. And Vrishchika lagna is one of the most important lagna for the many aspects. Okay, now I think this I'll place the North Indian style. थोड़ा ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल का. हाँ, ये यही नवांश भी कर रहा हूं मैं. This is the Rashi D1 and D9, both are put in the thing. And now shall I invite our friends? Anju Navale madam is there, Vedavati Bhosle are there, and Neeta madam is there. Many more are there, in fact. Okay. And now when I see here, I just made it a bit wide. So Anju madam, will you please express your thoughts? Good evening, sir. Good evening. Actually, I'm still new to astrology. Even we are learning, madam. Nobody is down to the earth and nobody is on the sky. We are all sailing in the same boat. A bit more, we may be knowing one point extra, and you may be knowing some other point extra. Every time I am learning new things. But sir, your lectures have given inspiration to go into this field of astrology, I'll say. Thank you. Thank you. Yes. You just express yourself, madam, so that we are conversing ourselves through our friends. You can just see the names. This is our family, small family. You are also our family member. Right, sir. Thank you, sir. Vedavati is my friend. Okay. So, she also joined today. Very nice. Group. Very nice. Yes, sir. Yeah, you can just give a small expression, whatever you like, about especially this case is discussed with for and referral to that of the diagnosis or disease concerns. Sir, I'm really very new. I have never done any. Okay, Subhra madam. I will express my. Hello. Yes. Yes, sir. So I just went through the Panchang first. So I will just
tell some points. Okay. I know, sir, I am also new, but I will just try. So the first thing I saw was that the child is born in Vrisha year, and Okay. people born in this year are generally slow. Okay. Then coming down to the Vyaghat. Vyaghat, actually it's a yoga, which generally they say it's an inauspicious yoga, but for the person born in this yoga is multitasked. And over the period of time, he gains a lot of knowledge in different things. Then he is born in the Karan Vishti. Now Vishti is a movable Karan, and it has ill effects of yoga are there in the health issues. He might be having health issues. So for this, I think there was a note in when I was going through the notes, it was like, the people performed Vishti, Karan, Shanti and all those things. So that is there. Lagna is in Anuradha Nakshatra, which is a nakshatra of Saturn. So people who are in Anuradha Nakshatra, they are slow learners, but they are successful later in life. The child was born in Moon Dasha, Venus Antar Dasha, and Saturn Pratyantar Dasha. So it is quite possible that the child must have had some issues regarding blood vessels of the neck or trachea, bones of the arms when he was born, and later on thoracic spine. I'm going through the Dasha, sir. In 2002, he must have had a lot of bronchus and thoracic spine issues, chest issues, maybe respiratory problems. And then from 2009, but 2002, he had Mars Dasha, and Mars is the Lord of the Ascendant. So I think that period was okay for him, but he definitely had some respiratory issues. 2009 onwards, he had Rahu Mahadasha, and Rahu, we can see it is placed in the 8th house, in Mercury's house, and Mercury is combust. So he has a lot of issues from 2009 onwards. The same issues because Jupiter and Rahu both are in Adra Nakshatra also. So, yeah. So I think he had a lot of problems with respiratory infections. And health-wise, sir, I don't know, you said that moon is Badak in this, but I can see that moon is exalted. And in Rohini Nakshatra, I think if he is a bit disciplined, I think he should come out of all these things. And one best point of his chart is Mars has got 8th aspect. 8th aspect on the 8th house. So I think he has problems that he is able to come out of it. And that's all, sir. And there are 2 more points which I will tell you last when everyone has spoken. I don't know whether I'm right or wrong. I just tried, sir. Okay, madam. Okay, thank you, sir. Thank you. And Kirti madam and who else are here? Sanjay ji, would you like to focus something? I will wait for Kirti madam to finish. After that, I'll give my 2 bits. Okay. You can just assess according to your convenience. Okay. Yeah, For me, if I look at it, to my mind, what I can see is that the second house, Karak of the second house for speech, they are kind of, afflicted in Rahu Ketu axis and Mercury being combust, and then in aspect of Ketu again. So is the child or is the individual having some kind of speech disorder? Okay. Okay. And Neeta madam, will you please? You can unmute and start video and you can talk. हाँ हेलो सर. Yeah. You can please analyze this case. हाँ मैंने ज्यादा तो कुछ नहीं, बस थोड़ी थोड़ी की है उसको. जितना की हम भी थोड़ी थोड़ी किया है. हाँ लगना आ रहा था.
वृश्चिक लग्न और जो ऋषभ सेवंथ हाउस ऋषभ राशि शनि और चंद्र, हाँ तो इसको जो शीत ज्वर बोलते हैं हम, वो हो सकता है। कौन सा मैडम? शीत ज्वर मतलब यानी वो जो हल्का हल्का बुखार जो नाड़ी में रहता है। हाँ हाँ और जो मंगल वृश्चिक राशि में जो मंगल होता है, हाँ तो इसको यानी सिर दर्द की भी तकलीफ होंगी। ओके और इसको पैर दर्द वाली भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे रीजनिंग मैडम? एक्चुअली हाँ हम हाँ वो एक मिनट। जब आप एक योग या एक रीजनिंग के साथ जब बोलते हैं तो वो रेफरेंस जो भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमें जो प्रिडिक्शन लोगों को करते हैं वो लोगों को बोलने के लिए वो लोग समझता नहीं, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। बट हाँ हम हाँ सभी नहीं समझ, नहीं हाँ किस विषय से करके। शंकर शब्द का यही चार्ट है ना मैडम? हाँ हाँ तो वही हाँ, ये चार्ट तो चार्ट तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ आप बोल दीजिए। हाँ यही चार। क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं वो कम दिखेगा, मैं जो दिखा रहा हूँ वो बड़ा दिखेगा। आपको षोडश वर्ग लगाऊं क्या मैं इधर? हाँ मैंने षोडश वर्ग का किया था उसका। अच्छा, ये डिविजनल चार्ट्स ये साउथ इंडियन में आ गया, चलेगा? हाँ नहीं नीता आपने किया हुआ आपके पास होगा ना? हाँ यही किया था मैंने इस पर से। जी बोल दीजिए उसके ऊपर। वो एक्सप्लेन ठीक है ना, मैं नेक्स्ट टाइम से करूंगी ना अच्छे से। ठीक है मैडम, ओके। हाँ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ऐसा है हाँ सर बोलिए, वागे सर। कि मैं तो कहीं इसका मुझे समय नहीं मिला कि मैं कोई इसकी दशा देख सकूं, अंतरदशा देख सकूं, या कोई भी और अन्य बातें उसकी देख सकूं, हाँ या कोई इसकी इस कुंडली को मैं कोई ग्रंथ से स्टडी कर सकूं। मगर जो कुछ मैंने ज्योतिष शास्त्र में पढ़ा है अब तक और जो मेरे दिमाग में फिट है, कुछ जो बेसिक आइडिया जो मेरे क्लियर है, हाँ सर, उस आधार पे ये जो कुंडली हमारे पास विवेचना के लिए है, खासकर इसको रोग कौन सा होगा इस विषय में यदि प्रेडिक्ट करना है तो मैं 2-3 बातें, हम बेसिक से ही जाएंगे। बेसिक से वो ये बात है कि रोग डिसाइड करने के लिए हम 6, 8, 12 ये 3 स्थान मुख्यतः देखते हैं। और 3 स्थान देखने के बाद आप छठे में देखिए कि मंगल की राशि है, 8वें में वीनस अपना शुक्र और गुरु है। शुक्र और गुरु की युति अत्यंत खराब मानी जाती है। और द्वादश स्थान में फिर शुक्र की राशि है। तो और इसके ऊपर जो अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान के ऊपर लग्नस्थ मंगल की 8वीं दृष्टि है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से देख रहा है। तो जो कुछ हमने पढ़ा था वो ऐसा था कि यदि अष्टम स्थान में शुक्र आ जाए, एक बात, या फिर द्वादश स्थान में शुक्र आ जाए, दूसरी बात, और तीसरी बात ये बोला था कि और वो यदि ये शुक्र मंगल दृष्ट हो, ये तीसरी बात। और चौथी बात ये है कि शनि चंद्र का विषयोग कुंडली में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी स्थान में हो, तो ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावना, इसमें अभी देखो 4 योग मिल रहे हैं डायबिटीज के। जो 12 जो उसके 15-20 योग है, 15-20 योग में से 4 योग डेफिनेटली मिल रहे हैं इस व्यक्ति के कुंडली में। यानी रोगेश केंद्र में हो, लग्नस्थ होके 8वीं दृष्टि से अष्टम स्थान को दिख रहा है, जहां शुक्र है और गुरु शुक्र की युति अपने आप में खराब है। और शुक्र की राशि द्वादश स्थान में है और शनि चंद्र का विषयोग सप्तम स्थान में है। तो ये जहां तक इसका विचार है कि रोग इसको क्या होगा, तो रोग के संदर्भ में
आप ये समझ सकते हैं कि इसको डायबिटीज होने की संभावना मैक्सिमम है। ऊपर से प्रमेह व्याधि भी हम गिनते हैं इसको, तो इसको शुक्र मेह और इसको एक गुप्त रोग होने की भी संभावना, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने की भी संभावना इस व्यक्ति को मैक्सिमम है। सर और दूसरी बात है, अगर ये देखा जाए तो वही ये बाकी तनुस्थान में मंगल है और दुबला पतला होने की संभावना है। ये आप माता के वनीला भी हो सकता है। ये एक मिनट, वो चार्ट पढ़ा रहने दीजिए सर, चार्ट पढ़ा रहने दीजिए। और पार्टनर के स्थान में शनि चंद्रों का विषयोग होने के कारण इसको पार्टनर से संबंधित दिक्कतें बहुत ज्यादा आने वाली है। एक तो विवाह, और शनि भी सप्तम स्थान में आया है, तो विवाह भी विलंब से होना, ऊपर से उसको मंगल दृष्ट होना, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि, वो भी, और सारे पॉइंट्स इसके नेगेटिविटी में जाते हैं। और विवाह के बाद ये मानसिक रूप से अस्थिर, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा समस्या है। इवन मातृस्थान का कारक, मातृस्थान का जो स्वामी है वो शनि भी सप्तम में गया है, तो इसको माता के संबंधित पीड़ा ये भी हो सकता है। मगर उसके ऊपर थोड़ा बुध और गुरु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा उतना डिटोरेट नहीं होगा। बट इसको डेफिनेटली पत्नी विवाह होने में एक विलंब या फिर पत्नी से बहुत ही ज्यादा इसको प्रॉब्लम होगा। ये मोटा मोटी तौर पे जो कुछ मुझे देखने को आ रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर। 2019 मध्ये यांना डिग्री दिली. राजशेखर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस केस के बारे में? भेटेल आपली मास्टर डिग्री भेटेल 2021 मध्ये. राजशेखर जी, वेदवती मैडम इज न्यू मेंबर। मैडम, अगर यदि आपको ऑलरेडी कुछ इससे परिचय हो तो आप शुरू कर सकते, कुछ बोल सकते हैं। ओके, मेरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं जब थोड़ा बहुत इसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं मैं। जी, कीर्ति जी भी बच गई, कीर्ति हाँ, जी को भी बोलना है। कीर्ति जी। जी सर, मैंने ये लिखकर भेजा था, वो स्क्रीन शेयर करूं कि बोल दूं? बोल दीजिए ना। बोल दीजिए। तो देखिए, मैंने जिस हिसाब से देखा है उसमें जो लग्न है वृश्चिक और रोकेश है, फिर भी वो लग्नेश है मंगल। तो और लग्न भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र राक्षसगणी नक्षत्र, और ये दाहक परिणाम देगा क्योंकि मंगल भी है और ज्येष्ठा नक्षत्र, इन दोनों का एकत्रित परिणाम जो है दाहकता देगा। और ये जो मूलतः है वो तनाव दिखाता है, स्ट्रेसफुल इसका ये दिखाता है। और रोगेश है पर लग्नेश भी है, इसलिए वो स्व राशि में थोड़ा सहज कंफर्टेबल रहेगा। पर बाधकेश चंद्रमा शनि युक्त होकर लग्न पर दृष्टि दे रहा है, तो ये रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा अवरोध देगा। और गले से संबंधित या मुख पर, मतलब चेहरे पर भी असंतुलन, इम्बैलेंस कुछ दे सकता है। उसके बाद में ये जो एक नियम है कि तृतीयेश जो होता है वो यदि नवमांश कुंडली में दूषित है, केंद्र में होगा तो अधिक तकलीफ देगा, लेकिन ये नवमांश कुंडली में शनि युक्त है, शनि जो है तृतीयेश, थर्ड हाउस का लॉर्ड, वो केतु युक्त है, तो ये मज्जा संस्था के बारे में हमको तकलीफें दे सकता है जातक को। उसके बाद में उत्पन्न करेगा ये। उसके बाद में मंगल अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। उसी के साथ में अभी फिलहाल उसकी राहु महादशा है और उसमें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो राहु जो है वायरस का कारक है और शुक्र जो है हम बोलते हैं जंतु संसर्ग। तो शुक्र ये रोगांश में है, जैसे राशि तुल्य नवमांश देखा जाए तो शुक्र रोगांश में आता है, वो मधुमेह यानी शुगर की प्रॉब्लम भी दे सकता है। उसके साथ ही अष्टम भाव में गुरु राहु और शुक्र के साथ है,
तो ये संतुलन करने में, बैलेंस करने में ये असमर्थ होगा। वायरल इन्फेक्शन भी दे सकता है, उसी के साथ कॉन्स्टिपेशन की तकलीफें भी देगा। उसके बाद में केतु जो है निधन अंश में है और केतु बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी दर्शाता है। और 2-8 एक्सिस में यदि राहु केतु रहते हैं तो डायग्नोसिस के लिए प्रॉब्लम देता है, मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस होने में समस्या आ सकती है। ये 2024 तक हॉस्पिटल से इसका संबंध दिखाता है। तो इसमें एक और योग है शनि चंद्र जो है तो शनि के संबंध में आया, तो इसमें मेडिसिन बदल के आराम हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये महादशा और अंतर्दशा को देखा जाए तो इसमें वायरल और ये जो सारे बताए हैं ये होने की अधिक संभावना लगती है। ओके मैडम, इधर ये वृश्चिक लग्न, एक बात मैं बताना भूल गया कि इसमें ये कुंडली मंगली भी है। तो मंगली होने के कारण और वो जो मैंने सप्तम स्थान का एनालिसिस किया था वो तो शनि चंद्र का विषय योग, वो उसको विवाह में जो अड़चने आने वाली है ये उसको और पोटेंशिएट करेगा सर, ऐसा मुझे लगता है। ओके इधर वृश्चिक मंगल लग्न, की पुष्टिकरण भी है ना सर? हाँ जी, तो और हाँ वो भी तक संभावना बढ़ाता है विष्टिकरण मांगलिक कुंडली। ओके अभी इसमें जब ये कुंडली देखा जाए, एक्चुअली हम नवांश से ज्यादा जरूरत नहीं है प्राइमरी एनालिसिस करते टाइम पे, ओनली आई गो विद द लग्न कुंडली, साउथ इंडियन लगाया मैंने मेरा कन्वीनियंट के लिए। वृश्चिक लग्न, ये वृश्चिक लग्न का स्वतंत्र भावता ज्यादा रहते हैं, इंडिविजुअलिटी, ये इंडिविजुअलिटी और लग्नेश लग्न में रहने से he is always a little anger even. That means हमें जो attention deficit syndrome ADHD जो बताते हैं, ये चाइल्ड एज पे जो भी है ये बच्चा जो भी है थोड़ा हाइपर एक्टिव चाइल्ड हो गया है, ऐसा मेरा भावना है। द्वितीय केतु as a malefic planet, in the second place it is going to give this stammering is being stated. Now the question here is, when we are looking at this, actually Mangala Kuja is in the second bhava rather than in the first bhava. The bhava chakra and lagna D1, when we are going to compare, there is a small change which is there, and Chandra is went into the 8th place in the bhava, whereas only Shani is there here in this. Now anyway, Saptama Shani himself is the Punarfu Yoga. He is going to get married or binded over at the early age, lesser than that of the actual recommended age of the government. The second is very much delayed. When we are going to see the Ashtaka Varga, 29 bindus are there in the 7th place. This 29 bindus, when they are there, usually this Punarfu Yoga is going to be get delayed. This boy is not going to be getting married at the early age, but there is every possibility of the exposures, which we can say. Here, not only the Kuja, but I count, especially for the females, the Mangal dosha, for the males, Sukra dosha. The same as the Mangal dosha, Sukra dosha also being stated here. Lagnat Ashtama Sukra is going to be making him a vulnerable in the sexual act. Okay, leave it. Let me come through my medical astrology Ayurjyotisham concept. Based on this, first one is the Lagna is the Anuradha 1. When Anuradha 1 is there, the Anuradha is the Vrushchika, of course. Vrushchika is in total, it being said as the distribution of the body parts genitourinary system.
kidneys and genitalia are very specifically targeted here in the Rasi. Anuradha Prathamapada is Simha Navamsha, where especially the portal circulation, liver and umbilical problems are being stated. सिंह नवांशा होने के नाते ये जो भी है हृदय संबंधित वैस्कुलर में कहीं कुछ प्रॉब्लम, इट कुड बी ए congenital anomaly of the septal defect also is possible, and a portal circulation, and at the time of the birth or the childhood he got the either the jaundice or the related such liver disorders, and secondly he is supposed to have some sort of the congenital disorders related to that of the heart also being stated here. Secondly, sixth lord. The sixth lord is the Mangala. Here, when we see the Kuja is 1.39 out of the, when you see the Bhava, Bala, especially Shadbala, when we see 1.39 and he is the strongest. There is one rule, when the strong Lagnesha is there, when the rest of the problems are going to be get nullified. Here, when I see this Lagnesha, the sixth lord in the Lagna himself and the Lagnesha, and aspecting the Shani and Chandra in the Rasi chart, this Lagnesha under the vision, the Shani and Chandra, they are not going to be acting as a malefic, in fact, because Lagnesha is looking or aspecting it. Here, when you see this Jeshta 3 posited Kuja, under the Jeshta Nakshatra, when we see third pada is the Kumbha Rasi and the Kumbha Navamsha. In the Kumbha Navamsha, when we are going to see, especially uterine and testicular problems are going to be estimated. Here, as it is a genitourinary, concerns are going to be more. A undescended testis or otherwise a testicular saccular problem or the genitourinary problem is being anticipated. This is the second thing. Third is the Chandra is posited in the Rohini 4. When the Chandra is posited in the Rohini 4, this Rishabha Rasi is related to that of the neck, especially the Rohini Nakshatra is going to be of the fourth pada related to that of the blood vessels of the neck. Here, the blood vessels impairment in the neck means there is a possibility of connecting with that of the heart, which is already Simha Navamsa previously, which we have discussed. That means a congenital anomaly of the either the septal or the in the heart somewhere is one is the anticipation. Second is the genitourinary tract, undescended testis is the second one. When we see under the Dasha, at present the Rahu Dasha is going on. Rahu is posited in the 8th, and from the Rahu, the Sukra is in the same place. That is, Rahu, Sukra are at the same place of the 8th. When there is a mathematical equation, 8 into 8 is being said as 0, and thereby here the plus into plus is equal to plus, minus into minus is equal to plus. Both are minuses. Minus into minus is, now it is going to be of the plus. Now when we see the under the KP astrology, here the one is the Rahu. Rahu is related to the now the only 8th house. In the entire Rahu Dasha, Ayu Bhava Karakas are going to be regulated because a Papagraha Rahu in the 8th place is being said as a good. The second is Sukra. The Sukra is related with that of the 8th house and 8th house and 2, 5, 7, 12. 8, 2, 5, 7, 12. The 2 is the food and 5 is of the higher studies and 7 is with that of the matrimony or otherwise conjugational happiness. 12th is also being said conjugational happiness and hospitalization. Now here, as rightly pointed out by our friend, there is a possibility of the sexually transmitted diseases or otherwise it could not be a sexually transmitted disease, but
ये genitourinary tract infections are being said to be common here in this period because of the his extravagance, or otherwise the as he is going to be more with that of the attitudes. As the 8 is being related here, there is no problem or life-threatening problems are not being suggested here. So as a conclusion, Rahu is always related to that of a musculoskeletal system and the foreign bodies, or otherwise the we can just say there is a unnecessary problems of the health of foreign in nature are going to be there, and Venus is related always with that of the sexuality. Thereby such diseases could be made out. Now this is what my small analysis over the particular horoscope related to that of the health. Now let the person who has given this case will reveal what is exactly there over and how it is being and what sort of the points are being coming across with. जी सर, नमस्ते सर। सभी का मैंने देखा, मैंने सुना है सभी का पॉइंट्स, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किए हैं, और बहुत अच्छा आप लोगों ने करीब करीब सभी पॉइंट्स आप लोगों ने उठाए हैं। खास करके शुभ्रा मैडम ने जो बताए थे ईयर, वो ईयर में स्लो पीपल रहते हैं। कीर्ति मैडम ने बुध राहु शुक्र संतुलन में असमर्थ, और बाकी सभी का भी हर एक इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। आपका तो ऑलमोस्ट सही है, और उसमें मुझे नहीं समझ रहा है कि आप जो रोगों के बारे में जो बोल रहे हैं, मतलब मैं वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से मैं फेमिलियर नहीं हूँ, सो मुझे उतना मैं केस क्या है वो बता देती हूँ, तो आप सभी लोग वो समझ जाएंगे कि कौन सा पॉइंट सही है या नहीं है। ये लड़का 2009 में 2010 में मैंने इसको देखा था, ये 2001 में पैदा हुआ है ना, तो तब मैंने जब देखा ये 9 साल का था। स्टिल वो एक झूले में छोटा बच्चा जैसा, उसके मम्मी उसको बिल्कुल छोटा बच्चा 1 ईयर 2 ईयर बेबी 1 ईयर बेबी झूले में कब तक रखते हैं हम लोग, 1 ईयर या 2 ईयर। मैं जब देखा 9 साल का बच्चा था, स्टिल वो पालने में जैसे झूले में था, मतलब उसका बॉडी जो छोटा बच्चा जितना ही था, खाली उसकी मुंडी जो थी वो बड़ा जितना 9 साल का बेबी का वो बात भी करता था, खाना भी खाता था, सब कुछ, बट उसका मम्मी पूरा उसकी सेवा करती थी बिल्कुल। अब कुछ केस ऐसा क्यों है, जो ये चीज हमें शायद ढूंढना है, इसलिए मैंने थोड़ा ये पेक्यूलियर केस मुझे लगा, तो मैंने आपके समक्ष रखी हूँ। और ये लड़का 2013 में इसका डेथ भी हो गया है। जैसे कि हमारी मैडम पाठक मैडम हमारी गुरु है, वो पाठक मैडम को जब मैंने 2009 में ये केस के बारे में बताई थी, हम लोग ऐसी स्टडी बहुत करते थे, तो पाठक मैडम ने बोली थी ये लड़का 12 साल 13 साल बचेगा, 2012-13 के करीब इसका डेथ हो जाएगा, ऐसा मैडम ने बोला था। और बराबर वो बच्चा 2013 में उसका डेथ भी हो गया था। तो यही कि इसको सारे प्रॉब्लम्स थे जितने आप लोगों ने बताया है। अब क्योंकि आप म्यूट हो गए मैडम। सॉरी जी, आप महीने बता सकते मैडम, विच मंथ? 2013? जी मैं थोड़ा सा ढूंढ रही थी, मुझे ना वो मिला नहीं था। मैं कल आपको इसमें डाल दूंगी अपने ग्रुप में। एक्चुअली मैं If I am not mistaken, this is Rahu Guru Shukra madam. Rahu Guru आज Shukra. ढूंढा था। Rahu Guru Shukra is from the 8th July 2013 in between 1st December 2013. After July is before December,
because Rahu, Guru, and Shukra, all the three planets are here. Actually, whenever we are Right. speaking, we don't speak about the death, madam, because Yeah. especially only once when I'm evaluating this case, I was looking about even death also. Otherwise, we never see in the death cases. But Exactly. here, when we are looking at Exactly. Rahu, Guru, Shukra, all the three planets, those who are in the 8th, this is the probable date in between July to December 2013. Probably this person would have died. Okay, that you have to you please clarify in the group later words. जी जी हाँ राइट सर, क्योंकि हमें वो चाहिए, डेथ का डेट भी चाहिए ताकि Exactly. हमें स्टडी के लिए अच्छा Exactly. रहेगा, ताकि यदि हम लोग इस तरह से हम किसी का कुंडली लिख देते हैं, बहुत सारे पंडित लोग तो लिख भी दे देते हैं ना, तो लिख के अगर दे देते हैं ये बच्चे के बारे में, तो मरण नहीं ऐसा लिखते, मतलब मैडम। हमारा शास्त्र नहीं, मरण नहीं, जैसा उसके आगे का लाइफ अगर हम पूरा लिख देते हैं, बट वो 13 साल में चला गया था, है ना, तो आगे का जो है वो फिर हम नहीं बता पाते, ऐसा होता है अक्सर। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये केस पहले मैं ओपन नहीं करूंगी, ताकि बहुत हम अच्छा पहले किया मैडम। नहीं, हाँ। इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि मैडम जैसा आपने बताया कि ये बच्चा आपने 9 साल में झूले में ही देखा, या ठीक है। और इसमें से एक बात तो यदि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने देखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं सीधा बोल दूंगा कि मुझे कोई ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। अगर ये ड्यूशेंस मस्कुलर एट्रोफी की केस है, मैं बोलूँगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 साल जिएगा और ये मर जाएगा उसके बाद प्रोग्रेसिव वीकनेस होके। मुझे कोई ज्योतिषी की जरूरत नहीं है उसमें। एक कॉमन मगर अगर यदि कोई ज्योतिषी ये बताता है, कुंडली देख के अगर ये बता रहा है कि इसके 13वें साल में डेथ होगी, तो ये वाकई जो है ये बहुत ही अप्रिशिएबल है और उस पाठक मैडम ने ज्योतिषी को मानना चाहिए कि उन्होंने अगर ये 13 साल में ये मरेगा ऐसा प्रेडिक्ट किया है, तो उनको पाठक बहुत मैडम ने मानना चाहिए। बताई थी। बाकी हम बिल्कुल डॉक्टर्स बिल्कुल को तो क्या है, ये स्टडीड रहता है सब, वो स्टडीड रहने के कारण वो तो एक बुकिश पिक्चर है कि ज्यादा से ज्यादा सेकंड डिकेड तक वो जाते हैं, 20 साल के तक जाते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं कि ये 13-14 साल जिएगा और उसके बाद मर जाएगा। नहीं, मैडम ने जो जिस बताई प्रकार थी का आपने पिक्चर बताया है, ये तो मुझे 100% लग रहा है कि ये ड्यूशेंस मस्कुलर एट्रोफी की केस है, जैसा पिक्चर आपने बताया। इसमें एक तो योग ये था, वो आप मज्जा ये देखिए कि उसको संस्था डिसीज क्या था, ये भी स्टडी आप ये भी जानकारी मंगाइए उससे जी कि जी उसको डिसीज इसमें क्या देखते था। ही एक योग दिखाई दे रहा है ना, मज्जा संस्था का विकार, नर्वस इसका नर्वस वो सिस्टम का वो ब्लड जो वेसल्स दिखा ना, मुझे एक योग दिखा, हम्म तो इसलिए मैंने वो इंसिस्ट किया उस पे कि जो अभी तृतीयेश होता है नवमांश कुंडली में, यदि वो दूषित हो जाता है, ये केंद्र में रहता तो वो तुरंत ही उसको लगता, वो उतने साल भी नहीं जीता, लेकिन ये लाभ भाव में है नवमांश कुंडली के, इसलिए इसको थोड़ा डिले हुआ। मुझे लगता है अगर ये पंचमस्त राहु होता है या राहु किसी भी एंगल से पंचम स्थान से कनेक्टेड होता है, तो केएसआर सर तो इसको ड्यूशेंस मस्कुलर एट्रोफी की केस बोल देते, क्योंकि हमने 3 कुंडलियां एटलीस्ट तो जो मेरे सामने थी उसमें देखा, तो उसमें वो पॉजिटिवली मिला भी था। मगर मैडम ने जिस तरह का पिक्चर बताया कि वो 9 साल में भी झूले में ही था, तो ये तो डेफिनेटली इंडिकेट करता, वैसा ही पिक्चर दिखाता है और उसका प्रोग्नोसिस भी वही होता है कि वो 13-14वें साल में मर जाता है। तो ये आप जानकारी निकालिए कि वो पेशेंट का था, तो हमको ये ड्यूशेंस मस्कुलर एट्रोफी की एक और केस मिल जाएंगी स्टडी के लिए, जिसमें कुछ पोजीशन कुछ थोड़ी अलग है। फिर हम इसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स किस तरह से हम इसको अभी बिठा सकेंगे उसमें, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए हमने क्या पैमाने अपने तय करने चाहिए, यही होती है एक रिसर्च स्टडी। क्योंकि अभी इसमें क्या है, मैं जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का डिप्लोमा कर रहा था लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ से, तो मेरा टॉपिक था डायबिटीज का। तो इस कारण मुझे डायबिटीज के योग तो फटाफट दिख जाते हैं कुंडली में, वो 4-5 चारों भी योग मुझे दिखे। अब ऐसी स्थिति में और उस वक्त भी मुझे टिपिकल जो ग्रंथोक्त योग है वो एक ही मिला था, मगर मेरा फाइंडिंग जो था कि
डायबिटीज के अधिकांश केसेस में बुधादित्य योग मिला। ये मेरी नई फाइंडिंग थी। जैसा मैंने एक बार केसर सर से भी डिस्कस किया था कि ये हमको जो नई फाइंडिंग मिलती है हमने इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। भाई हम जो आंखों के सामने दृष्ट है उसको आप कैसे इनकार करोगे? तो रिट्रोस्पेक्टिवली अभी हम रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ही कर सकते हैं इसका। राइट, कर ही रहे भाई हैं, अभी वही इसको कर रहे हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का थ्योरी इवॉल्व करने जैसा साइंस में अभी बहुत बार उल्लेख नहीं मिलता ज्योतिष साइंस में कि इससे जो एक नाड़ी के अलावा कि ज्योतिष नाड़ी से तुमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये करने प्रेडिक्ट करने चाहिए। फिर ऐसे क्या बाकी के प्रोपोजिशंस है। कुछ केएसआर सर ने जैसे लास्ट टाइम हमको बताया था कि पंचमस्त राहु हो तो उससे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का कुछ असेसमेंट कर सकते हैं। ऐसे कुछ अब ये टिपिकल कुंडली में अगर मैडम ने अगर इसकी वाकई में हिस्ट्री लिया और उसको यदि ये कर लिया तो फिर हम कुछ तो क्ल्यू पकड़ के कुछ हमारे क्योंकि सर ने जो बताए नवमांश में राहु पंचम में ही है, 5th हाउस में ही है ये लड़के के। हाँ, 5th हाउस में ही राहु है। 6th हाउस में है। हो सकता है। नहीं सर, मैडम जी हियर ये जो बच्चा का जो भी है मैंने 2 चीज मैंने तैयार किया है। नंबर 1 अनडिसेंडेड टेस्टिकुलर मैंने बताया था एंड सेकेंडली ADHD सिंड्रोम, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम और हाइपर एक्टिव चाइल्ड। इसका मतलब जो कुछ भी है ही इज समवेयर कनेक्टेड टू दैट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस स्पेशली। वो अगर यदि छोड़े उससे भी मुझे ज्यादा से ज्यादा जो भी है हेपेटोबिलियरी सिस्टम जो मैंने लिवर का जो बताया है उसी का लग रहा है साथ ही साथ मुझे। और ये कोई भी अगर यदि बच्चा जो ग्रोथ रिटार्डेशन हुआ बिकॉज ऑफ द माल नरिशमेंट एंड सर्कुलेशन, तीसरा जो भी मैंने द हार्ट वैस्कुलर प्रॉब्लम एंड सेप्टल प्रॉब्लम करके बताया मैंने। यूजुअली जो हार्ट प्रॉब्लम जो रहता है बच्चों को यू वेरी थिन एंड लीन रहते हैं और दम चढ़ता है लोगों को, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। अगर टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट दैट इज वन स्मॉल एग्जांपल। यूजुअली वो लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन नहीं मालूम, प्रॉबेबली ये एक हार्ट डिसीज तो होना ही है, साथ ही साथ उनका लिवर भी प्रॉब्लमेटिक हो। दिस टू इससे ADHD और हाइपर एक्टिव इधर, क्योंकि ये योगों में ऐसा होता है, हुआ तो राजा होता है नहीं तो भिखारी होता है, उसी योग तो सन्यासी योग हो जाता है। उसी हिसाब से जो कुछ भी इधर आर हाइपर एक्टिव भी एक नमूने का व्याधि ही हम मान के चलते हैं। तो अभी मुझे एक ही चीज है, जब आप बोलने के बाद राहु और गुरु एंड शुक्र, इधर राहु गुरु शुक्र का जो भी है आपका जो डेथ डेट बताया 2013 सेकंड हाफ आफ्टर जुलाई 100% it could be. Now this is with because of the malnourishment and his heart problem. Anyway आप कंफर्म करके अगली बार बता दीजिए। जी ओके, मैं उसका डेट वगैरह लेती हूँ, डेट ले लीजिए ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत विचार कर सके। कल मैं पूछ के ग्रुप में डाल देती हूँ। ग्रुप में डाल दीजिए। उसके बारे में मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसको उसमें शेयर करती हूँ, ताकि ये हम लोग एक स्टडी के लिए बहुत अच्छा केस है ये। और इसमें भी दृष्कांड फिर से वही आया है कि इसका जन्म लग्न ही दृष्कांड में आया है। अभी और लगा देता हूँ और नहीं आया है, दृष्कांड में ये नीच में गया है, लग्नेश नीच में गया है दृष्कांड में। वर्गोत्तम लग्न आप बता रहे हैं, इसके ऊपर मुझे भी एक बार थोड़ा स्ट्रेस करना पड़ेगा। वर्गोत्तम लग्न आया है इधर सर, ये दृष्कांड में वर्गोत्तम नहीं आएगा। ये वर्गोत्तम दृष्कांड में नहीं, दृष्कांड 1 है ये, तो पूर्व जन्म वर्ग उत्तमा मतलब जो भी 2 जगह पे एक ही लग्न यानी हम लोग नवमांश तक देखते हैं वर्गोत्तम नवमांश, वो कॉमनली नवांश ही रहता है देखने का, राशि नवांश, इसीलिए वर्गोत्तम उधर बोल देते हैं। वर्ग उत्तम मतलब एक वर्ग 2 जगह पे रहना वर्ग उत्तम है। बट दृष्कांडों में मैंने अक्सर देखा है सर, जो जिनका बर्थ का
लग्न ही अगर दृष्कर्ण में आता है, जरूर मेरा ऑब्जर्वेशन हमेशा ये रहा कि दृष्कर्ण यदि प्रथम लग्न ये प्रथम काम आता कीजिए है। मैडम, अगले जी। हफ्ते नेक्स्ट हाँ। थर्सडे हाँ ये वर्गोत्तम द्रक्काण और अदरवाइज लग्न एंड द्रक्काण में प्राणों हाँ। को ये वर्गोत्तम दोनों को नहीं आप फोकस करते हुए आप 10 मिनट का एक छोटी सी बात शुरू कीजिए। ओके, अच्छा हाँ। that will be a nice idea. हाँ, यानी 10 एक मिनट, अच्छा पहला होगा 10 कि हम मिनट। आधा पीरियड 15 मिनट कुछ हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करके फिर बाद में एक केस स्टडी को ले तो एक और भी 100%। ज्यादा अच्छा है। वो यानी बहुत ही हमें वेलकम सजेशन है। मगर हम मेरी ये देखेंगे। राजलक्ष्मी मैडम से एक विनती रहेगी कि आप किसी भी हालत में इस केस का मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाइए, रे रे क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड यदि हमारे हाथ में आया उसकी डेथ कैसे हुई तो हम ये कुंडली का रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। जी जी। और जो बहुत सारी चीजें जो अब तक मेडिकल मतलब एस्ट्रोलॉजी में एक्सप्लोर नहीं हुई है, जिसको हम एक साइंटिफिक वे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमारे पास बहुत प्रबुद्ध वर्ग जो भी है 10 लोग यहाँ पे बहुत प्रबुद्ध वर्ग आया है और बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड से है, तो हम लोग इसको अच्छे से मतलब इसके साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये लोग बहुत अच्छे परिवार, बहुत अमीर परिवार के हैं और ऐसा भी नहीं कि गरीब लोग हैं, अच्छे परिवार के हैं। और इसके भाई बहन शायद सभी अच्छे हैं, खाली यही लड़का ऐसा था, ऐसा कुछ मुझे याद है। मैं फिर भी एक बार कल मैं एक पूछ उनको लीजिए। हाँ पूछ लेती आप हूँ। पूरा पूछ लीजिए। इसलिए हाँ। मैं तो एक फिजिशियन की तरफ से सोचा मैं ये जैसा आपने पिक्चर बताया ना, क्योंकि माल नरिशमेंट आजकल होता नहीं है और सर ने माल नरिशमेंट प्रेडिक्ट किया वो कुंडली के पर से किया जी। लिवर और हमने जो असेसमेंट किया इन द बैकग्राउंड हेपेटोबिलियरी ऑफ सिस्टम प्रॉब्लम। लिवर हाँ, हिपेटोबिलियरी सिस्टम प्रॉब्लम एक दूसरा पॉसिबिलिटी व्यक्त किया सर ने, और एक माल नरिशमेंट। यदि मगर मुझे हेपेटोबिलियरी सिस्टम एज अ होने पर माल नरिशमेंट। हाँ, और तीसरा पॉसिबिलिटी व्यक्त किया सर ने कि हार्ट डिसीज हो सकता है, कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। मगर मैं इसको इस तरह से एनालिसिस करूं कि मैं एक फिजिशियन हूं, अभी मैं ज्योतिषी नहीं हूं। सर ने ज्योतिष के आधार पे 3 कंडीशन उसको प्रेडिक्ट किया है। और यदि आपने मैंने केस को देखा नहीं, मगर आपने इतना बोला कि 9 साल के बच्चे को मैंने झूले में देखा, यानी वो उठ खड़ा नहीं हो सकता है, उसको कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो वो झूला डॉक्टर्स लोगों की वो दो चार जो बातें दिमाग में आती है, उसमें से माल नरिशमेंट है, रिकेट्स है, ये ड्यूशेन्स मस्कुलर एट्रोफी है, या कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, ये स्वाभाविक है। बट माल नरिशमेंट और ये केसेस अभी रिकेट्स जो है आज के तारीख में इसलिए नहीं मिलते कि अभी न्यूट्रिशन का अवेयरनेस वगैरह बहुत बढ़ गया है। क्योंकि मैं अभी ये भी नहीं पूछा कि बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो अभी हमने पूछा नहीं। फिर भी मैं आज कम से छोटे से छोटे तबके तक भी न्यूट्रिशन की व्यवस्था अच्छी हो रही, इसलिए वो जो डिसऑर्डर्स जो एक जमाने में बहुत कॉमन थे, वो इतने सजा सजी मिलते नहीं है। और अगर टेट्रोलॉजी फैलेट यानी हमारे भाषा में जो है ना, वो हार्ट में एक बड़ा प्रॉब्लम होता, 4 तरह की विकृतियां होती है। तो वो 4 तरह की विकृतियां रहने से तो उसका उतने साल तक भी सरवाइव करना जो है वो ये नहीं होता। तो वो भी पॉसिबिलिटी एक जनरली रूल आउट हो जाती है। अगर उसको और दूसरी भी उसका शरीर जो है वो काला नीला होते रहता है, अगर ऐसी कंडीशन रही तो, क्योंकि इम्प्योर और प्योर ब्लड का मिक्सिंग होते रहता है उसमें से। तो वो भी कोई लक्षण नहीं था, मगर वो 13वें साल में मरा। तो अभी 2 पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी वो ड्यूशेन्स मस्कुलर एट्रोफी की, और दूसरी पॉसिबिलिटी जैसा कि कुंडली के आधार पे सर ने प्रेडिक्ट किया है हार्ट डिजीज की। ये 2 पॉसिबिलिटी। नेक वैस्कुलर प्रॉब्लम इज आल्सो देयर। नेक वैस्कुलर प्रॉब्लम। तो सबसे बेस्ट ये इसमें ऐसा होगा कि आप इसका मेडिकल रिकॉर्ड मंगवाइए, तो हमको एक स्टडी के लिए एक बहुत अच्छा कुंडली एक मिल जाएगा। जी जी हम उसको कुछ हाँ, findings इसलिए लाएंगे। तो संजय जी, जैसे कि डॉक्टर कीर्ति जी संजय, आपने कैसा बताया, अष्टम में बुध राहु शुक्र संतुलन में असमर्थ। डॉक्टर संजय जी जी सर, आज आपने ये केस देखा है
ऑलरेडी मैडम अगले हफ्ते के लिए ग्रुप में डाल देंगे। ओके, आप आज की नया मेंबर है, आपको अपनी फैमिली कुटुंब कैसा रहा, ज्योतिष परिवार, और साथ ही साथ आपको क्या लगा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जैसा आप बोल के कंक्लूड कर दीजिए। ये दो तीन फेसेस तो मेरे नोन टू हैं, एक आप हैं, एक राज्य लक्ष्मी जी हैं और एक कीर्ति मैडम है। ओके, राज्य लक्ष्मी जी ने मेरे को कीर्ति मैडम के पास रिकमेंड किया फॉर ज्योतिष स्टडी। ओके, और आपको तो मैं पर्सनली Yes, of course. पिछले करीब 1.5 साल से जानता हूँ। बाकी मैं सुभाष वाघे जी का भी नाम ग्रुप में देखता रहता हूँ। He is principal at present. आज का एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, एक्सीलेंट। Although I have not given too much of emphasis or maybe very serious kind of concentration on the medical aspects of astrology, but then this definitely is a trigger for me to look into that area as well. Okay, with this Thank you remarks, so much. we'll कीर्ति मैडम कुछ कहने वाली थी, राजेश बोलिए। मैडम ने कुछ यस पूछा मैडम, है, कीर्ति हाँ। मैडम। हमारे कुछ ज्ञान में कुछ भर पड़े। मैंने वो निकाला था कि भाई उसके गले में मतलब नेक के पास में संतुलन नहीं हो सकता, उसमें कुछ मुख पर, गला या मुख पर संतुलन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो वो बोल रहे हैं ना Exactly, मैडम। भी ठीक से नहीं हो रही थी। Exactly. इसीलिए वो खड़ा नहीं रह पा रहा है। नहीं, he is not, है ना? वो खड़ा भी नहीं। एक्चुअली मुझे अभी वो जो नेक करके मैंने जो बोल दिया है, प्रॉबली वो कंडीशन को क्या बोलते हैं, वाघे सर बोलना, चिल्ड्रन दे कैन नॉट मेक द नेक स्टेबल, वो गिर जाता है सिर। वो स्पाइनल कॉलम का जो भी प्रॉब्लम रहता है, वो स्पाइनल कॉलम का उसमें वो नेक में स्पेशली वो सीधा खड़ा नहीं कर सकता है। कौन सा कंडीशन बोलते हैं सर उससे? हाँ। वो नेक वैस्कुलरिटी करके मैं जो बोल रहा हूँ, एंड इट इज रिलेटेड इवन विद द टफ, बिकॉज मैंने ये भी बताया वो धनुष में चले जा रहा है। मंगला कुजग्रह जो लग्न में हमें समझ रहा है, भाव में जो भी सेकंड प्लेस पे चले जा रहा है, दैट इज धनु। अदरवाइज धनु राशि में नहीं है। ये भी शायद हमें करना पड़ता है। वैस्कुलर वीकनेस, बिकॉज ऑफ द वैस्कुलर वीकनेस, द स्पाइनल वीकनेस, thereby the spinal cord is inactive and he cannot make out. A spinal cord paralysis also could be there. Because of that, there is no movement, no nourishment. Even though there is nourishment, because of there is no movement, the body parts doesn't grow. वो बढ़ता नहीं है। वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, पेडियाट्रिक्स में आता है। आजकल थोड़ा मैं भी बुढ़ा होके भूल जा रहा हूँ। सुभाष वाघे जी कुछ बोल सकते हैं आप? वो हाँ, नहीं अभी आप पेडियाट्रिक कंडीशन। हाँ, Pseudo hypertrophy of muscles are you talking about, sir? वो एक्चुअली वो नहीं होता सर। तो वो अलग है, बट अभी जो आप बोल रहे हैं कि उसके गर्दन का वीकनेस रहता है, वो वीकनेस का तो पता नहीं, लेकिन वो एक तरफ जो टिल्ट हो जाता है टॉर्टिकोलिस के अंदर होता है। हाँ, एग्जैक्टली। टॉर्टिकोलिस जो है वो उसमें ना टॉर्टिकोलिस भी एक कंडीशन है। हाँ, टॉर्टिकोलिस भी, और वो बच्चे में भी मिलता है टॉर्टिकोलिस। एनीवे लेट अस, और वो उसमें गर्दन बहुत ऐसी ये भी हो जाती, बड़ी हो जाती है। हाँ, वो खड़ा भी नहीं कर सकते हैं। एनीवे वी आर वेरी मच। मगर एक और कंडीशन है जो सर ने बोला ना, एक और कंडीशन है जिसमें ऐसा गर्दन लुढ़क जाता है, लुढ़क जाते हैं। सर्वाइकल काइफोसिस करके कुछ होता है सर, इज इट दैट? मैडम काइफोसिस में जो भी है मसल स्टिफनेस एंड रेगुलरिटी, रेगुलर मूवमेंट रहता मैडम। ये जो भी इंस्टेबिलिटी, वो आप छोड़ दिया तो दाएं को गिरेगा, बाएं को गिरेगा, पीछे गिरेगा, सामने भी गिरेगा, किधर भी गिरेगा। इट्स लाइक स्नेक नेक। मैंने एक सिंड्रोम है, उसका नाम जो है ना, मैं ठीक है सर, आप ग्रुप में डाल दीजिए। जिलेट, दो सिंड्रोम सर मेरे को पता है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रिलेट। नॉट ऑटिज्म। जिलेट, नो सर, it's not autism. It is not autism. It is not autism. Gillette syndrome or something like Grizzle syndrome. I don't know. अगर यदि हमारे को अवेयरनेस कीजिए ताकि हम once again recollect कर सके। Thank you very much, and we'll stop here. And thank you, sir. Thank you very much. Back again next Thursday 9 o'clock. Bye.
Good night, night. everyone. शुभ रात्रि।